السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ بگ ویل کیک ہاؤس، ہم ہیں کچھ خاص، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیسٹ کوالٹی ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بگ ویل کے اسپیشل دم کے روٹ، ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، ہر عمر کی پسند بگ ویل کیک ہاؤس۔ بگ ویل کیک ہاؤس کے اسپیشل شوگر فری جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا جوہری۔ دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایسے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایسے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالارجن کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ بسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اسمبلی میں جاب کیلنڈر جاری کیا جائے گا۔ راجیو گاندھی سول ابھے ہستم اسکیم کا وزیر اعلیٰ نے کیا افتتاح۔ میڈی گڈھا پر کانگریس کے جھوٹ کا پردہ فاش، KTR کی نکتہ چینی۔ انحراف قانون، بے روزگاروں پر ظلم، پروٹوکول کی خلاف ورزی پر گورنر سے BRS وفد کی ملاقات۔ ارکان اسمبلی کے سوالات کے فوراً جواب روانہ کیے جائیں، بجٹ سیشن میں سینئر عہدیدار موجود رہیں۔ چیف سیکرٹری کا جائزہ اجلاس۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع بشمول حیدرآباد میں بارش، آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش قیاسی، ہنگامی ٹیمیں متحرک۔ شہر میں ڈرگس کا بڑا ریکٹ بے نقاب، 1 کلو ہیروئن مالیت 7 کروڑ روپے ضبط کر لی گئی۔ سائبرآباد پولیس اور نارکوٹکس بیورو کی کارروائی۔ اور خاتون کو ہراساں کرنے اور ناشائستہ پیامات روانہ کرنے والا صنعت نگر سرکل انسپکٹر معطل۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہفتے کے دن پرجا بھون میں راجیو گاندھی سول ابھے ہستم اسکیم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ تحریک نوجوانوں کی ملازمتوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کی گئی تھی۔ تلنگانہ نے قربانیوں کے ستونوں پر ریاست کا درجہ حاصل کیا ہے۔
हुकूमत बेरोजगारों के मसाइल को हल करने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। हुकूमत में आने के बाद 3 माह के अंदर 30,000 जायदादों पर तकर्रुरी के अहकामात पहले ही दिए गए थे। गुज़िश्ता 10 सालों में बेरोजगार नौजवानों ने बहुत जिद्दोजहद की। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC में UPSC की तर्ज पर इस्लाहात की गई हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 के इब्तदाई इम्तिहानात का इनेकाद किया है और DSC के इम्तिहानात जारी हैं। हुकूमत ने बेरोजगारों को दरपेश मुश्किलात और ग्रुप 2 के इम्तिहान मुलतवी करने का फैसला किया। हुकूमत की अवलीन तरजीह बेरोजगारों के मसाइल को हल करना है और इम्तिहानात को मौसर तरीके से मुनक्किद करने का भी फैसला किया है। जॉब कैलेंडर का ऐलान रियासती असम्बली के आइंदा बजट इजलास में किया जाएगा। हुकूमत हर साल मार्च से पहले हर महकमे में मखलूआ जायदादों का डाटा मुरत्तब करेगी। नोटिफिकेशन 2 जून तक जारी कर दिया जाएगा और भर्ती का अमल 9 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि हुकूमत ने हैदराबाद में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। BRS पार्टी के अरकान मुकर्रना के साथ रियासती गवर्नर राधा कृष्णन से मुलाकात करते हुए इन्हिराफ कानून की खिलाफ वर्जी, बेरोजगारों के खिलाफ हमलों और केस दर्ज करने और कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे उसको पूरा न करने पर शिकायत दर्ज की। मुलाकात के बाद KTR ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत कायम होते ही जॉब कैलेंडर और 2 लाख मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया गया था। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी और सेंट्रल लाइब्रेरी में पुलिस के जुल्म ज़्यादती की भी शिकायत की। KTR ने कहा कि रियासत में इन्हिराफ की सियासत के जरिए दस्तूर का खून हो रहा है। BRS पार्टी के 10 अरकान असम्बली को कांग्रेस में शामिल किया गया है। तमाम तफसीलात गवर्नर को दी गई हैं। KTR ने कहा कि रियासत में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की जा रही है। राहुल गांधी दस्तूर की किताब को हाथ में लेकर बात कर रहे हैं तो रेवंत रेड्डी हुकूमत इसकी खिलाफ वर्जी कर रही है। गवर्नर ने KTR को तयख्खुन दिया कि वो इस सिलसिले में हुकूमत से बात करेंगे। KTR ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा। हैदराबाद में कम्मा ग्लोबल समिट में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि लफ्ज कम्मा का मतलब है मेहनत के मेयार से आशना होना और माँ जैसी बेपनाह मोहब्बत का इजहार। कम्मा बरदरी ज़रख़ैज़ ज़मीनों के आसपास हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। कम्मास का बुनियादी किरदार सख्त मेहनत और दूसरों की मदद करना है। कम्मा बरदरी इज्जत करती है और बहुत प्यार दिखाती है। हम सब ने NTR की लाइब्रेरी में तालीम हासिल की और इसने हमें आला सतह तक पहुँचाया। NTR ने क़ियादत का एक ब्रांड बनाया है और बहुत से लोगों को सियासी तौर पर तरक्की करने के मौक़े फराहम किए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में NTR के जरिए मुतारिफ कराई गई इत्तेहादी सियासत की वजह से आज बहुत से लोगों को सियासी मौक़े मिले हैं। उन्होंने अपील की कि हैदराबाद को एक आलमी और कॉस्मोपॉलिटन शहर के तौर पर फ़रोग़ देने में शराकतदार के तौर पर शामिल हों। उनकी हुकूमत इस बरदरी की सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। हम हर ज़ात और मज़हब का एहतराम करते हैं। रियासती तेलंगाना में किसी के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं है। हुकूमत इम्तियाजी पॉलिसियों पर अमल नहीं करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कौमी सियासत में तेलुगु कायदीन के रोल की अदम मौजूदगी नजर आ रही है। कौमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तेलुगु कायदीन की ज़ात और मजहब से बालातर होकर हौसला अफजाई की जानी चाहिए। हुकूमत कम्मा संगम को अलॉट की गई 5 एकड़ आराजी की मिल्कियत के तनाज़े को हल करने के लिए पुरअज़्म है। ज़मीन के मसले को हल करने के अलावा हुकूमत कम्युनिटी बिल्डिंग की तामीर के लिए भी फंड्स फराहम करने के लिए तैयार है। कम्मा बरादरी से अपील की है कि वो दूसरों की मदद करने की आदत तर्क न करें। BRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साजिशों के बाद भी कालेश्वरम प्रोजेक्ट महफूज है। मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मेडिगड्डा बैरेज को लेकर कांग्रेस का अब ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने पर उनका सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि कालेश्वरम में मेडिगड्डा बह गया और 1 लाख करोड़ रुपए ज़ाय हुए। उन्होंने कहा कि एक मामूली मसले के बारे में गलत मालूमात फैलाई। मेडिगड्डा मौजूदा सैलाब के पानी को बर्दाश्त करने की सलाहियत को जाहिर करता है। मेडिगड्डा बैरेज को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था वो गलत साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो मेडिगड्डा का दौरा करेंगे और तमाम हक़ाइक़ मंजर आम पर लाएंगे।
KTR ने एक और सवाल पर कहा कि रेवंत रेड्डी ने कहा कि 1 महीना इम्तिहान मुलतवी किया गया तो 100 करोड़ रुपए का फायदा कोचिंग सेंटर्स को होगा। अब इम्तिहान 4 महीने मुलतवी किया गया, इस हिसाब से 400 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इसमें रेवंत रेड्डी का कितना फायदा है, ये रेवंत रेड्डी ही बता सकते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गोपनपल्ली फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया है। तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि श्रीलिंगमपल्ली की तेज रफ्तार तरक्की की जिम्मेदारी हुकूमत लेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में मसाइल को हल करने और आफात से निपटने के लिए हाइड्रा के नाम से एक नया निज़ाम कायम किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि लंदन की दरियाए थीम्स की तरह मूसा नदी को खूबसूरत बनाएं। हुकूमत ने मूसा नदी की तरक्की करने का फैसला किया है। जल्द ही मंसूबे तैयार करने जा रहे हैं और 1,50,000 करोड़ रुपए से काम शुरू करेंगे। हुकूमत का मकसद हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर के तौर पर तरक्की देना है। मौजूदा हालात में मूसा नदी मतलब है नाक बंद करना। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा 5 सालों में हमने मंसूबा तैयार किया है ताकि दुनिया भर के सयाह इसकी सैर कर सकें। मूसा नदी की तरक्की को देखेंगे तो अवाम हुकूमत को याद करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की में आप सबको शामिल होना चाहिए। आपसे ताउन की दरख्वास्त करते हैं कि आइंदा 10 सालों में हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाया जाए। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस माह की 23 तारीख से शुरू होने वाले बजट इजलास के सिलसिले में सीनियर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली के जरिए उठाए गए तमाम सवालात के जवाबात मुकम्मल मालूमात के साथ और फौरी तौर पर भेजें। उन्होंने कहा कि बजट सेशन के दौरान सीनियर ओहदेदारों को मौजूद होना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई कम्युनिकेशन गैप न हो। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के रामकृष्ण राव ने बताया कि रियासत का सालाना बजट इस माह की 25 तारीख को पेश किया जाएगा। आने वाले दिनों में मुख्तलिफ महकमों के मुतालिबात पर बहस होगी। उन्होंने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि नोट ऑन डिमांड और महकमे जाती बजट को वक्त पर तैयार रखा जाए ताकि अराकीन इससे आगाह हों और मौज़ूआत बहस के लिए उठाने के लिए काफ़ी वक्त मिले। प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, नवीन मित्तल, शैलजा रायमार और दीगर ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर के राव ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में खुसूसी पूजा के एहतमाम के बाद केशवराव ने जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज दीपादास मुंशी, अरकान मुखन्ना, अरकान पार्लियामेंट और मेयर विजयलक्ष्मी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि तेलंगाना में जात पात की मरदमशुमारी के बाद ही मजालिसी मुकामी इंतखाबात करवाने का हुकूमत का फैसला खुशाइंद है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार, तमिलनाडु में स्टालिन मरदमशुमारी कर रहे हैं। हनुमंतराव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया था। कांग्रेस हुकूमत में खिलाड़ियों को तरजीह देना चाहते हैं। असेंबली इजलास में खेल के लिए खुसूसी बजट मख्तस करेंगे। हर जिला केंद्र में खेल के मैदान के लिए 5 एकड़ आराजी मख्तस करें। उन्होंने कहा कि इस मामले में वजीर आला को मकतूबी तहरीर करेंगे। हुकूमत ने रियासत में स्कूल्स के औकात में जुज़वी तब्दीली की है। इस सिलसिले में महकमे तालीमात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक मेमो जारी किया है, जिसके मुताबिक हाई स्कूल के औकात सुबह 9 बजे से शाम 4:15 तक होंगे, बजाय सुबह 9:30 बजे तक शाम 4:45 तक। ये औकात रियासत भर के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के मुताबिकत में हैं। अलबत्ता दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ट्रैफिक की वजह से प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के औकात सुबह 8:45 तक शाम 4 बजे बरकरार रहेंगे। शहर हैदराबाद में भी बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बारिश की लपेट में हैं और महकमे मौसमियात की पेशकयासी है कि आज 6 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। अवाम को मुहतात रहने का मशवरा दिया गया है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की तरफ से अवाम से अपील की गई है कि किसी भी तरह की शिकायत के लिए 040-211-11111 या 9000-1136667 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है। कई प्रोजेक्ट्स में पानी का तेज बहाव देखा गया है। मंशरियाल, आसिफाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, नलगुंडा और महबूब नगर से भी बारिश की इत्तलात मिली हैं।
हैदराबाद में बारिश की वजह से बाज मकामात पर सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए देखे गए हैं। कुतुबुल्लाहपुर में मुकामी खवातीन ने सड़कों पर पड़े गड्ढों की मरम्मत न होने पर इन गड्ढों में पौधे लगा दिए। उनका कहना था कि फौरी मरम्मत के काम किए जाएं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में सरकारी तालीमी इदारों में मियारी तालीम तलबा को सहूलतों की फराहमी के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला की अनथक कोशिशें जारी हैं। हफ्ते को रुकन असम्बली ने पहले चंचलगुड़ा जूनियर और डिग्री कॉलेज कैंपस का मुतल्लिका महकमा जात के अहदेदारों के साथ दौरा किया। रुकन असम्बली ने बताया कि चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज की नई इमारत में मजलिस की जानिब से तलबा की सहूलत के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जूनियर कॉलेज की इमारत की जल्द तामीर के लिए फंड्स की इजराई के सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी। अहमद बलाला ने बताया कि आसपास के छोटे स्कूल्स को एक जगह मुंतकिल करने के लिए नई आलीशान इमारत तामीर करने के लिए नुमाइंदगी की गई है ताकि तलबा को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मियारी तालीम फराहम की जा सके। रुकन असम्बली ने बताया कि चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज कैंपस में पीजी कॉलेज के लिए भी तजवीज़ दी गई है। इस कैंपस में केजी तक पीजी तालीम की फराहमी मजलिस का मकसद है, जिससे इस कैंपस में 15,000 तलबा तालीम हासिल कर सकें। रुकन असम्बली ने बताया कि कालाडेरा में भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल तामीर किया जाएगा। अहमद बलाला ने बताया कि मजलिस की कोशिश है कि सरकारी तालीमी इदारों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करें ताकि तलबा को मियारी तालीम के हुसूल में आसानी हो। रुकन असम्बली ने बताया कि इन तालीमी प्रोजेक्ट्स के लिए असम्बली में भी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी और वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए फंड्स मंजूर करवाए जाएंगे। बाद में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट जूनियर कॉलेज व स्कूल्स का दौरा किया और वहां भी दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में तफसीलात हासिल की। रुकन असम्बली ने स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और असातिज़ा को तयक़ुन दिया कि तलबा की सहूलत के लिए बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज, चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज कैंपस में और मलकपेट जूनियर कॉलेज, मलकपेट स्कूल के कैंपस के अंदर तमाम जूनियर कॉलेज, स्कूल एजुकेशन और कॉलेजिएट कॉलेज के डायरेक्टर्स और कमिश्नर और डीओ वगैरह के साथ हमने दौरा किया, मायना किया। नई डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग जो बनकर रेडी है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो इंशाअल्लाह इससे पहले भी जब डिग्री कॉलेज यहाँ पर मजलिस ने सैंक्शन किया था, मजलिस ने अपनी जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर, बेंचेस, कंप्यूटर्स वगैरह दिए थे और यहाँ भी डिग्री कॉलेज के अंदर भी मजलिस इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें मुहैया कराएंगी ताकि बच्चों को नई बिल्डिंग के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वहाँ पर लोग तालीम हासिल कर सके। उसके साथ ही साथ जो जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग का काम भी जो स्लो चल रहा है उसके स्पीड अप के लिए भी हमने बात किया, फंड्स इमीडिएटली रिलीज़ करने के लिए कहा और साइड में जो छोटे छोटे स्कूल्स है वो तमाम स्कूल्स को डिसमेंटल कर कर वहाँ पर एक अच्छी आलीशान बिल्डिंग स्कूल्स के लिए, बच्चों के लिए, जिसमें मियारी तालीम सरकारी मदारिस के अंदर हम दे सकें, उसके लिए भी मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी की गई है। और इंशाअल्लाह मजलिस ये तमाम ये चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज की जो कैंपस है उसके अंदर एक पीजी कॉलेज का भी हमने प्रपोजल दिया, तो केजी से पीजी ये कंप्लीट ये पूरे कैंपस को मजलिस इंशाअल्लाह बनाएंगी और इसी एक कैंपस के अंदर 15,000 के करीब 10 से 15,000 बच्चे सिर्फ ये एक कैंपस से पढ़कर निकलना ये मजलिस का निशाना है। और इसके साथ ही साथ मलकपेट के अंदर गर्ल्स का जूनियर कॉलेज है और बॉयज़ का जूनियर कॉलेज है, उसके साथ उनको भी अपग्रेड करते हुए वहाँ भी डिग्री कॉलेज करेंगे और स्कूल के अंदर भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो और एक स्कूल की बिल्डिंग वहाँ पर बनाने के लिए भी हमने कहा है। और कालाडेरा में भी एक लैंड आइडेंटिफाई की गई है, वहाँ पर भी एक इंशाअल्लाह मियारी तालीम, मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक गवर्नमेंट स्कूल वहाँ भी तामीर किया जाएगा। तो बहरहाल हमारी यहाँ की आवाम से, मलकपेट की आवाम से और अतराफ अकनाफ की आवाम से ये गुजारिश है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा तालीम जैसा महंगी होते जा रही है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स बेहतरीन अंदाज के अंदर अच्छे टीचर्स के साथ, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मियारी तालीम बच्चों को मिल सके। उस हिसाब से मलकपेट में हम कोशिश कर रहे हैं कि मजलिस यहाँ पर नुमाइंदगी कर कर अच्छे मियारी इदारे बनाएं। उसी ज़िमन के अंदर आज तमाम इदारों के कमिश्नर और डायरेक्टर्स के साथ यहाँ पर हमने मायना किया और असेंबली में आने वाली असेंबली में भी चीफ मिनिस्टर से मिलकर ये तमाम फंड्स मजलिस सैंक्शन कराकर ये कामों की यकसुई कराएंगी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रनमसपुरा डिवीजन के सेटविन सेंटर्स का दौरा करके कोर्स के अलावा दीगर मसाइल का भी जायजा लिया।
सदर मजलिस और रुकने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर उन्होंने मुर्सी कॉलोनी और अनमस्तपुरा के सेटविन सेंटर्स का अचानक दौरा किया। उन्होंने तलबा और स्टाफ से मुख्तलिफ मसाइल और कोर्सेज के बारे में भी बात की और ये जानने की कोशिश की कि सेटविन सेंटर्स के जिम्मेदार तलबा से ज्यादा फीस वसूल कर रहे हैं। चूंकि सदर मजलिस और रुकने पार्लियामान बैरिस्टर अवैसी को सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई थी, इस मौके पर मजलिस के मुकामी रुकने बलदिया अब्दुल कादिर के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर खैरताबाद के हमराह एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें महकमे आबरसानी और GHMC के अहदेदारों और मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि इस मौके पर मैनहोल्स की सफाई, सड़कों के काम, बलकापुर नाले के काम, जियागुड़ा कमेले के कामों के अलावा आर्किटेक्चर, पार्क्स को फरोग देने का काम और नालों और दीगर कामों के बारे में भी बात की गई। उन्होंने बताया कि जोनल कमिश्नर ने बास कामों को अंदरून 10 यौम पूरा करने का तयख्खुन दिया, जबकि लापरवाह गुत्तेदारों को बरतरफ करने के लिए भी तवज्जो दहानी की गई। उनका कहना था कि जोनल कमिश्नर ने नए कामों को भी जल्द मंजूरी देने का तयख्खुन दिया। इजलास में मजलिस के सीनियर लीडर्स ने भी शिरकत की। महकमे आबकारी संगारेड्डी की इन्फोर्समेंट टीम ने 115 किलो गांजा जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर महकमे आबकारी जी श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके उनकी टीम ने संगारेड्डी के कामकोल टोल प्लाजा पर छापा मारकर बाबा साहब एकनाथ कैफर और राजनाथ बांडे को गिरफ्तार किया, जिनका ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र और रियासत उड़ीसा से है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन गैर कानूनी तौर से गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के हाथों पकड़े गए आबकारी पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से गांजे के अलावा 2 कारें, नकद रकम 40,000 रुपए, 6 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं, जिसकी जुमला मालियत 42,50,000 रुपए बताई जाती है। छापा मारने वाली टीम में PNEI B गांधी नायक, P वेनारेड्डी, CH चंद्रशेखर, A अनिल कुमार, B यादయ్య, मोहम्मद अलीम और असदुल करीम के अलावा दूसरे मौजूद थे। रेलवेज की तरफ से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि 20 जुलाई से 21 जुलाई के दरमियान बाज MMTS ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद स्टेशन पर मरम्मती कामों के पेश नजर यह फैसला किया गया है। रामचंद्रपुरम फलकनुमा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद फलकनुमा सिकंदराबाद ट्रेन नंबर 47252, सिकंदराबाद मेडचल ट्रेन नंबर 47243 और मेडचल सिकंदराबाद के अलावा हैदराबाद लिंगमपल्ली फलकनुमा ट्रेनों को मनसूख किया गया है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम जारी है। दारुस्सलाम में रुकन असम्बली नामपली मोहम्मद माजिद हुसैन ने 21 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन से इजहार तशक्कुर किया है। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की चौकसी बरकरार है। टप्पा चबूतरा के इलाके में जुमे की रात पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। दरकार दस्तावेजात न होने वाले 2 व्हीलर्स और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। शहर में बढ़ते जराइम के 22 पुलिस को चौकस देखा जा रहा है। साइबराबाद पुलिस नारकोटिक्स ब्यूरो के ताउन से 4 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने बताया कि राजस्थान के साकिनान यमनी चंद भट्टी, निर्पित सिंह, अजय भट्टी और सुरेश सरवी राजस्थान से ड्रग्स लाकर हैदराबाद में जायद मुनाफे पर फरोख्त करना चाहते थे। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक जब्त की गई 1 किलो हेरोइन की कीमत 7 करोड़ रुपए है। 250 ग्राम के 4 पैकेट्स में हेरोइन छुपाई गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 4 स्मार्टफोन्स भी जब्त किए हैं। साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने सनत नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पुरेंद्र रेड्डी को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। तफसीलात के मुताबिक पुरेंद्र रेड्डी ने पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाली खातून को मुबैना हिरासा किया था। इसके साथ साथ खातून के मोबाइल पर भी नाशाइस्ता पयामात रवाना किए थे। मुतासरा खातून की शिकायत पर साइबराबाद CP ने कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया है। बताया गया है कि मुतासरा खातून ने कमिश्नर साइबराबाद को इंस्पेक्टर के पयामात दिए, जिसमें इंस्पेक्टर ने खातून को अपने बताए हुए मकाम पर आने के लिए इसरार किया था। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ई फकीरों की बस्ती में बावर्ची पर उसकी साथियों ने नशे की हालत में 70 से हमला कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक सद्दाम नामी बावर्ची अपने साथियों के साथ मुबैना शराब नोशी कर रहा था। बहस व तकरार के बाद उस पर हमला कर दिया गया। सद्दाम को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। सद्दाम के भाई ने बताया कि उनका भाई अलहदा काम कर रहा था और ये बात उसके साथियों को नागवार गुजरी और इसलिए उस पर हमला किया गया। पुलिस की तलाशी मुहिम के बावजूद ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। होटलों का कारोबार जारी है, शराब की दुकानों के पास भी बैनोशी हो रही है। पुलिस को तवज्जो देने की जरूरत है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। बेकवेल केक हाउस, हम हैं कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। असेंबली में जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। मेडीगड्डा पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश, केटीआर की नुक्ताचीनी। इनहराफ कानून, बेरोजगारों पर जुल्म, प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर गवर्नर से बीआरएस वफ्द की मुलाकात। अरकान असेंबली के सवालात के फौरन जवाब रवाना किए जाएं। बजट सेशन में सीनियर ओहदेदार मौजूद रहें। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में बारिश। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेश क़यासी। हंगामी टीमें मुतहर्रिक। शहर में ड्रग्स का बड़ा रैकेट बेनकाब। 1 किलो हेरोइन मालियत 7 करोड़ रुपए जब्त कर ली गई। साइबराबाद पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई।
اور خاتون کو ہراساں کرنے اور ناشائستہ پیامات روانہ کرنے والا سنت نگر سرکل انسپکٹر معطل۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد اسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔